Hello guys, welcome back. So in this video we will cover the important schemes of Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. So here we go. So the first scheme is Rashtriya Gokul Mission, which was launched in the year 2014 by the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. This is based on 100% grant basis, that is, it is a central sector scheme, 100% funded by the Government of India. Under this Rashtriya Gokul Mission, the aim is to conserve and develop indigenous breeds. Indigenous breeds of what? Rural cattle and buffalo. So cattle and buffalo breeds, the indigenous breeds and the nondescript breeds would be preserved and conserved by the establishment of Gokul Grams. And at the level of the state, it will be implemented by the livestock development boards. National Dairy Development Board is the implementing agency of the project. There are certain components under it. Number one is breed improvement by modern reproductive techniques, increasing the production and productivity of cattle and buffaloes, and extension of artificial insemination coverage. This is not artificial intelligence, this is artificial insemination. So we need to extend the artificial insemination so as to produce good quality indigenous and nondescript breeds. So the aim of this scheme is basically to conserve the indigenous and nondescript breeds, and therefore in 2014 we have come up with this scheme. So moving further, the next component is awareness program under this scheme. We need to conserve indigenous breeds, and there is a provision of the establishment of Gokul Grams under this scheme, in which will act as an integrated indigenous cattle centers where the development of indigenous and nondescript breeds using quality semen would be done. Under this Rashtriya Gokul Mission, there are two national Kamdhenu breeding centers which has been set up so far. They are one Andhra Pradesh and the another one is in Madhya Pradesh. So two national Kamdhenu breeding centers have been set up, one in Andhra Pradesh and the other in Madhya Pradesh. So we are done with this scheme. I don't think anything has been left here. Everything has been covered and questions would not be asked in much detail from this scheme. We need to remember the date of launch, what the scheme is meant for. Fine. Moving to the next scheme, the National Livestock Mission, which was again launched in the year 2014. This scheme pertains, this is a centrally sponsored scheme, not central sector scheme. This pertains to the sustainable growth and development of livestock sector in a holistic fashion. This is a very comprehensive scheme which does not only pertain to the cattle and buffalo, but also to other domesticable animals which can be taken up as an alternate source of income by the farmers. So under this scheme, the target is to increase the production of fodder and feed and focus on its quality, focus on the infrastructure, backward and forward linkages in this field. So we are basically concerned with livestock, everything related to livestock. Subsidy under the scheme is provided via SIDBI. SIDBI provides refinance facility to financial institutions which in turn provide loan to the end borrowers or the farmers practicing livestock or involved in the livestock sector. There are certain sub schemes under it, or the focus areas under the National Livestock Scheme includes the breed development of livestock and poultry. Then we have this one, feed and fodder development. Then we have research and development, livestock insurance, extension and innovation. Then we have entrepreneurship development and employment generation. Then what are the different financial assistance provisions under this scheme? So if a farmer undertakes poultry activity, capital subsidy to the extent of 50% of the investment would be provided, subject to a maximum of rupees 25 lakh. In the case of sheep rearing and goatry, that is in the case of a small ruminant sector, 50% capital subsidy again would be provided, but here the cost would be subject to a maximum of 50 lakh, not 25 lakh. The third one is the same as the second one.
that is feed and fodder development. If you undertake feed and fodder development activities, then you will be provided with subsidy of 50%, subject to a maximum of rupees 50 lakh. Then finally we have piggery. In this piggery, again 50%. So in all these things, whether it's poultry, sheep, goat, or feed and fodder or piggery, 50% is constant. That is 50% subsidy would be provided. But the maximum amount of subsidy entitled under these components are different. In first case, in the case of poultry, it's 25 lakh rupees. In the case of ruminants, it's 50 lakh rupees. In the case of feed and fodder, it's again 50 lakh rupees. And in the case of piggery, it's 30 lakh. Fine. Now, Government of India provides a one-time assistance to the states at the rate of rupees 10 lakh for strengthening the existing cattle and buffalo semen banks. So, for strengthening the semen bank, 10 lakh is provided as one-time assistance by the central government to the states. So, we are done with this scheme, National Livestock Mission, in which the focus is on holistic development of the livestock sector. But in the first mission, that is which we read right now, that is Rashtriya Gokul Mission, the focus was basically on cattle and buffalo to preserve, to conserve and develop the indigenous and nondescript breeds. National Dairy Development Board being the implementing agency under the Rashtriya Gokul Mission. Under the National Livestock Mission, the implementation is done via SIDBI. So SIDBI is an important institution under this National Livestock Mission. There are different financial assistance provided for different activities in the livestock sector, which we have discussed here. So we are done with these two schemes. Let's move to the next scheme. हमारे पास अगला स्कीम है DIDF, डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. ये फंड है बेसिकली जो नाबार्ड के अंतर्गत सेटअप किया गया है 2017 में. अभी के दो स्कीम्स जो थे वो 2014 के थे, ये 2017 का स्कीम है. DIDF, डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, focuses on dairy processing field. What we need to promote here, कोऑपरेटिव सेक्टर आए मिल्क प्रोसेसिंग के फील्ड में. ठीक है, हमें कोऑपरेटिव सेक्टर को बूस्ट करना है ताकि वो मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट स्टैब्लिश करें. ये जो फंड है वो नाबार्ड के अंतर्गत होगा, लेकिन फंड का मैनेजर है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड. जो इंटरेस्ट सबवेंशन, इसमें फाइनेंशिंग फैसिलिटी, इफ यू अंडरटेक डेयरी प्रोसेसिंग एक्टिविटी यू विल बी प्रोवाइडेड विद लोन एंड दैट लोन विल attract an interest subvention up to 2.5%. This 2.5% interest subvention is provided to NABARD, which in turn provides interest subvention to the lending financial institutions. Okay, so the funding period under this scheme was launched in 2017 and the funding period is from 2018-19 to 2022-23. ठीक है, 18-19 से 22-23 तक फंडिंग पीरियड है इस स्कीम का. और ये रीपेमेंट को मिला के अगर देखें तो ये चलेगा 2031 तक. तो आप देखें 23 से 31 तक जाएंगे तो यू विल गेट 8 ईयर्स. तो रीपेमेंट पीरियड इस स्कीम का 8 ईयर्स है, यानी कि 30-31 तक. फाइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कितना आउटले है, दिस हैज़ बिन रिवाइज्ड. द रिवाइज्ड आउटले स्टैंड्स एट 11,184 crore rupees. सो डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, वी हैव दिस outlay of 11,184 crore rupees. Fine. So this scheme, Dairy Processing Infrastructure Development Fund, is implemented by National Dairy Development Board and National Cooperative Development Corporation. Why NCDC? Because we need to promote cooperative sector. Cooperative sector को हमें boost करना है in the field of dairy processing, and therefore NCDC. Why NDDB? Because we are talking about dairy sector. Therefore both NDDB and NCDC are implementing agencies under this DIDF program, though the fund has been set up under the NABARD. NABARD provides loan to the NDDB NCDC at 6%, and these NDDB NCDC in turn lends to the eligible end borrowers. Very important point to note here is the eligible end borrower is not an individual farmer. The eligible end borrowers include milk unions, milk producer companies, state dairy federations, multi-state milk corporations. So basically they all are kind of cooperatives only. So we need to boost the cooperative sector so as to incentivize them to come in the dairy processing field. Fine. आगे क्या है? AHIDF. Moving to the next fund, very important, AHIDF.
So AHIDF or Animal Husbandry Infrastructure Development Fund, this was set up in the year 2020 by the Ministry of Animal Husbandry, Dairy and Fisheries. कॉर्पस यहाँ पे बहुत सिंपल है, 15,000 करोड़ का. जब ये लॉन्च किया गया था तो ये 3 साल के लिए 2021 से 22-23 के लिए था. और इसमें बेनिफिशियरीज इंडिविजुअल्स भी हैं, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स भी हैं AHIDF में. DIDF में इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स नहीं थे, यहाँ पर इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स हैं एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में. उनके अलावा प्राइवेट कंपनीज, FPO, सेक्शन 8 कंपनीज, MSMEs, दे ऑल कैन पार्टिसिपेट इन दिस स्कीम. 15,000 करोड़ के कॉर्पस के साथ ये स्कीम है. एनिमल हस्बेंड्री के फील्ड में आपको फंड प्रोवाइड किया जाएगा. विच ऑल फील्ड? बीट डेयरी प्रोसेसिंग, बीट मीट प्रोसेसिंग, बीट वैल्यू एडिशन, बीट एनिमल फीड प्लांट. तो आप कुछ भी करें एनिमल हस्बेंड्री के फील्ड में, आप मोस्ट वेलकम हैं. आइए और फंड उठाइए इस स्कीम के अंतर्गत. लोन बैंक प्रोवाइड करेगी आपको आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का 90%. आपको अपने घर से 10% लेकर के आना है. माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स हैं तो 15% लेकर के आना है. अगर आप एक मीडियम एंटरप्राइज हैं तो 2.5% इंटरेस्ट सबवेंशन हमने देखा DIDF में. यहाँ पर 2.5 नहीं है, 3% है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करेगी. यहाँ पर भी रीपेमेंट पीरियड 8 ईयर्स का है, जिसमें 2 साल का मोराटोरियम होगा. मतलब 2 साल के बाद आपको पेमेंट शुरू करना होगा अपने लोन का 6 ईयर्स तक. तो 6 + 2 = 8 ईयर्स टोटल रीपेमेंट पीरियड. फाइन. SIDBI अगेन कम्स इनटू पिक्चर. SIDBI पोर्टल का पोर्टल है उद्यमी मित्र, वहीं पर ahidf.udyamimitra.in. यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन आप कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन का. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम प्रोजेक्ट इफ़ एंड यू वांट फंडिंग अंडर द प्रोजेक्ट, आपको मिलेगा. SIDBI पे जाइए, रजिस्टर कराइए. क्रेडिट गारंटी फंड भी इसके अंतर्गत बनाया गया है फॉर दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इस स्कीम के अंतर्गत पार्टिसिपेट करते हैं और लेंडिंग प्रोवाइड करते हैं. उनको उनके क्रेडिट फैसिलिटी का 25% तक कवर किया जाएगा. उनके क्रेडिट का गारंटी कवरेज मिलेगा उनको. और ये फ़ंड मैनेज किया जाता है नाबार्ड के द्वारा. और ये कॉर्पस कितना है इस फंड का? 750 करोड़ रुपीज़. कॉर्पस ऑफ AHIDF इज़ 15,000 करोड़, लेकिन इस AHIDF के अंतर्गत जो क्रेडिट गारंटी फंड बना है उसका कॉर्पस है 750 करोड़. फाइन, वी आर डन विद दिस. मूविंग टू द नेक्स्ट. NPBBD, National Program for Bovine Breeding and Dairy Development. This was launched in the year 2014 itself. Ministry of Animal Husbandry, Dairy and Fisheries के द्वारा. यहाँ पर हमें मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट करना है और डेयरी सेक्टर पे ध्यान देना है. मिल्क के प्रोडक्शन को बूस्ट करना है बेसिकली. 2 कंपोनेंट्स इसमें, नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट. नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग, यहाँ पर ब्रीडिंग पर फोकस है ताकि हम हाई क्वालिटी सीमेन प्रोवाइड कर सके ताकि बेटर प्रोजेनी डेवलप हो. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे फोकस है नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग में, जहाँ पर 5,000 मैत्री होते हैं गाँव के वैसे नौजवान युवा जिनको इन्वॉल्व किया जाएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने के लिए. तो मैत्री का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है. मल्टीपर्पज़ AI से हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मल्टीपर्पज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया. तो रूरल इंडिया के ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन है. 5,000 मैत्री इसके अंतर्गत हमें एम्प्लॉय करने हैं और ये 100% ग्रांट इन एड बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉस्ट इसका बियर करेगी ताकि इंडिजिनस ब्रीड्स को कंजर्व किया जा सके. अगेन वी आर फोकसिंग ऑन इंडिजिनस ब्रीड्स. Then the second component under this scheme is National Program for Dairy Development. This has been launched. स्कीम लॉन्च हुआ 2014 में और 2014 से 2021 तक ये लागू रहेगा. Now this has been revised till 2026. Very very important. NPDD has also been revised till 2026. Under this scheme infrastructure सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप क्वालिटी मिल्क प्रोड्यूस कर सके. इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें जैसे कि कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करना है डेयरी फार्मर्स को, क्वालिटी पर फोकस हो इसके लिए उनको अवेयरनेस जनरेशन का भी काम कराना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करना है ताकि एट द एंड क्वालिटी क्लीन मिल्क प्रोडक्शन हो. तो ये 2 फोकस एरियाज़ हैं हमारे इस स्कीम के अंतर्गत. 2 कंपोनेंट्स में एक बार हमने देखा ब्रीडिंग पर फोकस करना और एक बार डेयरी डेवलपमेंट पर फोकस करना है. दिस इज़ नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट, जिसमें एक टर्म आया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और मैत्री के थ्रू वो हम करेंगे. इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड.
ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 60-40-90-10 का फंड शेयरिंग होगा। 2 कंपोनेंट हमने देखा ऊपर, अब फिर से इसमें और इसको एक और तरीके से 2 कंपोनेंट में देख सकते हैं हम। कंपोनेंट ए जो हमने ऊपर डिस्कस किया, दैट वाज बेसिकली कंपोनेंट ए, जिसमें फर्दर 2 कंपोनेंट्स थे। ये कंपोनेंट बी जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं डेयरी डेवलपमेंट के फील्ड में, उनको जीका जो सॉवरेन वेल्थ फंड है जापान का, उनके थ्रू फंडिंग प्रोवाइड करी जाएगी। सो वी आर डन विद दिस 2, let's move to the next part. The next one is, क्या हो गया भाई, this is National Digital Livestock Mission. Not very important, बस देख लेते किसका इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव है, दिस इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम बेसिकली जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है उससे जुड़ा हुआ जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर के आएंगे। ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और डिपार्टमेंट ऑफ डेयरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का एक प्लेटफॉर्म है INAPH, उसी के फाउंडेशन पर इसको भी बनाया गया है, NDLM को, नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन को। INAPH क्या है? इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ। इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ, बेसिकली ये एक मॉडर्न इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगला, नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम NADCP, ये लॉन्च हुआ है 2019 में। ओके, बेसिकली हमें फोकस करना है FMD और ब्रुसेलोसिस, ये 2 बीमारियां हैं जिसे हमें दूर करना है। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 13,343 करोड़ 13,343 करोड़ रुपीज़ स्पेंड करना है 5 ईयर्स में। 2019 में लॉन्च किया गया था, 2019-20 से 2023-24 तक। तो हमें इरेडिकेट करना है इनको बाई 2030 और कंट्रोल करना है बाई 2025। सो कंट्रोल बाई 2025 एंड इरेडिकेट बाई 2030। ब्रुसेलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो बैक्टीरियम ब्रुसेला अबॉर्टिस से होता है, ये एक रिप्रोडक्टिव डिजीज़ है। FMD वायरल है। सो ब्रुसेलोसिस इज बैक्टीरियल, FMD इज वायरल एंड बोथ नीड्स टू बी इरेडिकेटेड। फाइन। INAPH जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का है वो यूज़ किया जाएगा एनिमल डेटा को कैप्चर करने के लिए। नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम भी हमारा हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट, DEDS, डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट स्कीम ये 2010 का ही है। यहाँ पर भी डेयरी सेक्टर पे फोकस करना है और डेयरी सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करना है। मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज़ ने 2010 में लॉन्च किया था, जहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करना है डेयरी सेक्टर में। वेरी इंपॉर्टेंट कि इस स्कीम के अंतर्गत आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1/4 यानी कि 25% कैपिटल सब्सिडी मिलेगा। इफ़ यू बिलोंग टू SC ST यू विल गेट 33.133 यानी कि 1/3 ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट एज सब्सिडी। फाइन। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज अगेन NABARD here, DEDS. The beneficiaries can be farmers, self-help groups, dairy cooperative sectors, milk unions and PRIs. Now we are done with this DEDS as well. There are certain institutions, important institutions, जिनके हेडक्वार्टर हमें पता होने चाहिए, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ, ये उत्तर प्रदेश के बागपत में है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात के आनंद में है, 1965 में बना। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, एक्ट 1984 के थ्रू बना है। 1984 में वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। लाइफ स्टॉक मिशन आप सभी ने कर लिया होगा, मैंने भी कर लिया है, सो वी आर नॉट कवरिंग इट हेयर। अभी हमने जो 3 फंड्स देखे, एक और फंड हम देखेंगे FIDF। चलो पहले उसको देख ही लेते हैं। FIDF जो है फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये 2018 में स्टैब्लिश होता है 7,522 करोड़ कॉर्पस के साथ। इसके अंतर्गत भी इंटरेस्ट सबवेंशन 3% का है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी NABARD, NCDC और नेशनल लोनिंग एंटिटी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होगा। फाइन। और जो FIDF है फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उसके अंतर्गत हमने देखा 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन है। 5 साल का लेंडिंग पीरियड 2018 में बना था, तो 2018-19 से 22-23 तक। रीपेमेंट आप 12 साल तक कर सकते हैं FIDF में। बाकी 2 हमने फंड जो पढ़े हैं उसमें 8 साल का रीपेमेंट था, यहाँ पर 12 साल का रीपेमेंट पीरियड है। मोराटोरियम 2 साल का, 10 साल में वापस करो। तो और लोन हमने देखा था AHIDF में 90% का मिलेगा आपको, यहाँ पर 80% आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का 80% मतलब 20% आपको लेके आना है। ओवरऑल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नेशनल लेवल पे NFDB है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड।
फाइन, हम यहाँ पर क्या देखने वाले थे, ये तीनों स्कीम का एक कंपैरिजन, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। एक जगह मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। इंटरेस्ट सबवेंशन DIDF में 2.5% है, AHIDF में 3% है और FIDF में भी 3% है। रीपेमेंट पीरियड DIDF और HIDF में 8 साल का है और FIDF में 12 साल का है। लोन कितना मिलेगा आपको, AHIDF में 90% और FIDF में ओनली एंड ओनली 80% तक। फाइन, कॉर्पस देख लेते हैं। DIDF का 11,184 करोड़, AHIDF का 15,000 करोड़, FIDF का 7,522 करोड़। AHIDF का बहुत सिंपल है, 15,000, FIDF का 7,522 करोड़ और 11,184 करोड़ DIDF का। तो हमने तीनों फंड देख लिया। अगला स्कीम है हमारे पास नेशनल डेयरी प्लान फेज 1, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2011-12 से 2018-19 तक चला। अगला ब्लू रिवोल्यूशन। ब्लू रिवोल्यूशन बेसिकली स्टार्ट हुआ था एज नील क्रांति मिशन इन द ईयर 2016। 2017 में इसको रिफर्बिश्ड वर्जन आया, ब्लू रिवोल्यूशन नील क्रांति मिशन, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज विद एन outlay of 3,000 crore for 5 years. Again, the targets are not very important under this. Let's move to the very important scheme which has been launched in the year 2020 called the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. This was basically to foster what we envisaged under the Blue Revolution. ब्लू रिवोल्यूशन के ही मकसद को हम आगे ले जा रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के थ्रू। 2020 में ये स्कीम लॉन्च किया गया। 20,050 करोड़ 2050 करोड़ 5 साल में खर्चा करना है, फाइनेंशियल ईयर 21 से 25 तक। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें 2 कंपोनेंट हैं, सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट बेनिफिशियरी ओरिएंटेड है, नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड है, इतना डेप्थ में नहीं जाना है हमें। फाइनेंशियल असिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोजेक्ट कॉस्ट का यहाँ पे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट कॉस्ट का जनरल कैटेगरी को 40% फंडिंग प्रोवाइड करी जाएगी, SC ST और वुमेन कैटेगरीज को 60% फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। मत्स्य संपदा फिशरीज सेक्टर में आप को प्रमोट करने के लिए ये आपके प्रोजेक्ट पर 40% एंड 60%, 40% एंड 60% का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना है। इसके अलावा 3,000 रुपये पर बेनिफिशियरी मिलेगा ऑफ सीजन में आपके फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। NFDB नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड इज़ द नेशनल नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। देर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टारगेट्स अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही क्रूशल है। ये टारगेट्स तो हम देखते हैं। टारगेट्स, फिश प्रोडक्शन हमें कितना इंक्रीज़ करना है, 2025 तक हमें टारगेट अचीव करने हैं। तो सारे टारगेट्स बाई 2025 हैं। तो फिश प्रोडक्शन हमें अचीव करने हैं 220 लाख मेट्रिक टन्स, 220 लाख मेट्रिक टन्स। ग्रोथ फिशरी सेक्टर का एवरेज एनुअल ग्रोथ 9% का होना चाहिए टिल 2025। टिल 2025 एग्रीकल्चर GVA में फिशरीज़ का कंट्रीब्यूशन 9% पहुंच जाए, ये हमारा मकसद है। उसके अलावा हमें एक्सपोर्ट को बूस्ट करना है और एक्सपोर्ट की अर्निंग को डबल करनी है 2025 तक, और ऐसा करके हम 1 लाख करोड़ रुपए कमा लेंगे फिशरीज़ प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके। तो प्रोडक्शन में 220 लाख मेट्रिक टन्स, ग्रोथ 9%, कंट्रीब्यूशन ऑफ फिशरीज इन एग्रीकल्चर GVA 9%, डबल दी एक्सपोर्ट्स और 1 लाख करोड़ कमा लेना है हमें। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है। प्रोडक्शन 220 लाख मेट्रिक टन्स, प्रोडक्टिविटी मतलब पर यूनिट एरिया, यानी कि पर हेक्टेयर में कितना हम टन्स फिशरीज़ या फिर जो भी एक्वाकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं उनको कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पर हेक्टेयर 5 टन्स हमें चाहिए, ये टारगेट है। अभी फ़िलहाल ये 3 है, हमें 5 चाहिए। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत होते हैं 20 से 25%, उनको कम करना है बाई 2025 टू 10%। डोमेस्टिक फिश कंजम्पशन को भी इंक्रीज़ करना है, पर कैपिटा पर ईयर 12 kg होना चाहिए। उसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 55 लाख लोगों को मिलेगा। इस स्कीम के अंतर्गत FFPOs की भी बात हुई है, और FFPOs का सबसे पहली बार जिक्र हुआ था बजट 2020 में। FFPOs होते हैं FPOs की तरह जो फिश फार्मर्स होते हैं उनका प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। बजट 2020 में कहा गया था कि 500 हमें बनाने हैं, 500 में 300 और 200 आप बाइफर्केट कर लें। 300 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बनाए जाएंगे और 200 ऐसे ही बनाए जाएंगे। हर FFPO में 100 मेंबर्स होंगे, प्लेन एरियाज़ में कम से कम, और नॉर्थ ईस्ट हिली एरियाज़ में इवन 35 भी होंगे तब भी चलेंगे। तो ये यहाँ पे हमने ये मिनिस्ट्री के सारे इम्पोर्टेंट स्कीम्स कवर कर लिए हैं। क्विक रिवीजन का तरीका है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।